will understand how to rationalize the denominator. And what do you mean by rationalizing the denominator? It means to make the denominator in a rational number. So in case we have a square root sign in the denominator, we remove that square root sign and we get a rational number. हम आज पढ़ने जा रहे हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का क्या मतलब है? आपके इर्रेशनल नंबर में स्क्वायर रूट का साइन होता है. अगर वो साइन डिनोमिनेटर में है और हम उसको चेंज करके एक रैशनल नंबर बना देंगे डिनोमिनेटर वाले इर्रेशनल नंबर को, उसको हम बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. एक एग्जाम्पल ले रहे हैं. rationalize the denominator of 1 upon root 3. डिनोमिनेटर वर्ड, ये डिनोमिनेटर होता है, ये न्यूमरेटर होता है. तो आपने इसको रैशनलाइज करना है तो आप इसको देखेंगे डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में रूट 3 है. हम किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चेंज नहीं होती है. तो अगर 1 की जगह मैं लिख सकती हूँ रूट 3 अपॉन रूट 3. सो जो नंबर हमें यहाँ डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है वही नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. सो वी विल गेट द डिनोमिनेटर एज अ रैशनल नंबर. सो दिस इज रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर चेक करेंगे, जो लिखा हुआ है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. अब अंडर रूट 3 इंटू 1 को हम लिखते हैं अंडर रूट 3. अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 होता है 3. तो हमारा अंडर रूट 3 गिवन था एक इर्रेशनल नंबर. हमने रैशनलाइज करके उस डिनोमिनेटर को बना दिया है रैशनल नंबर. सो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मीन्स from root 3 we have changed it to a irrational number into a rational number. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. वन अपॉन 7 प्लस 3 अपॉन 2. अब इसमें यहाँ पे 2 टर्म्स हैं. पहले वाले एग्जाम्पल में एक टर्म थी, हमने उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. यहाँ पे 2 टर्म्स हैं. जहाँ पे 2 टर्म्स हैं वहाँ पे हम बीच का साइन देखेंगे. यहाँ प्लस है तो हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? -3√2. हमने वही सब नंबर्स नोट किए हैं बट ये बीच का साइन चेंज किया है. प्लस को क्या लिया है? माइनस. और यहाँ पे लिख दिया 7 माइनस रूट 3. सो ये इफ़ यू क्रॉस इट आउट यू गेट 1. सो वॉट एवर वेन एवर यू आर रैशनलाइजिंग, you 2 terms are there, you will check the symbol in between. Plus you will take minus when you are taking the what you have to divide and multiply. Let's multiply now. This whole bracket, when you multiply with 1, you can keep a bracket, it remains same. So I get 7 minus 3√2. Numerator multiplied with numerator, denominator multiplied with denominator. Now this is 7 plus 3√2 multiplied with 7 minus 3√2. We have done one identity where we have done a square minus b square is a plus b, a minus b. So we will use this identity here in this question. A is 7, a is 7 and b is 3√2. You can see here a plus b, a minus b, a plus b, a minus b. So a is 7 and b is 3√2. You have to be very careful. The minus sign is before 3√2. So minus sign is before b. So b will become my 3√2. Now we have right hand side here
we will use the identity and put it in this form. So now we will put in the left hand side of this identity. I'll write here at the top. So from here I am writing here. So my numerator is 7, 3 upon 2, a square. A is what? 7. So we get 7 square minus this minus. B is what? 3 root 2 square. Now we get 7 minus 3 root 2 as it is. 7 square means 7 into 7, that is 49, and minus this is 3 3s are 9 multiplied by root 2 into root 2. 3 into 3 root 2 into root 2. Square means you are writing multiplying what is given with itself. So we get 7 minus 3 root 2, that is 49, minus root 2 into root 2 is 2. 9 into 2 becomes 18. And when you subtract, you get 9 minus 8, 1, 4 minus 1, 3. Now from irrational number which was given to us, we have changed the denominator to a rational number. So we have rationalized the denominator. I am repeating once again. अगर आपको दो टर्म्स गिवन है और हमें रैशनलाइज करना है तो आप सब सेम नोट करेंगे, लेकिन ये बीच का सिंबल चेंज करेंगे. प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस होता तो मैं यहाँ पे प्लस लिखती. जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे. इसको 1 से मल्टीप्लाई करा तो 7 माइनस एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 1 गिव्स यू 1. सो आई गेट 7 माइनस 3 रूट 2. फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है. हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए ब्रैकेट्स लगा के कर दिया. अब हमने आइडेंटिटी यूज़ करनी है. आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी. राइट हैंड साइड गिवन है तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं. तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर. ए क्या था? 7, तो 7 का स्क्वायर. बी क्या था? 3 रूट 2 उसका स्क्वायर. ये हमने एज इट इज कॉपी किया. 7 स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 49. 3 रूट 2 3 इंटू 3 9 और रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2. सो 2 इंटू 9 मिल गया 18. सब्ट्रैक्ट करके आ गया 31. ये आपको याद रखना होगा. रूट 2 इंटू रूट 2 2 कैसे है मैं एक बार आपको वो भी बताती हूँ. ये रूट का मतलब होता है पार इज 1/2. ये स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है? हमारी पार 1/2. यहाँ पे भी पार 1/2. हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स किए हैं. जब बेस सेम होता है तो पार्स ऐड होती हैं. सो बेस सेम तो बेस को एक बार ही लिखते हैं और पार्स को ऐड करते हैं. अब इसका एलसीएम क्या हो गया? 2. और 1 + 1 हमने न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर सेम था 2. उसको एक बार ही लिखते हैं एलसीएम को और न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया. सो हमारे पास आ गया 2/2. कट के बच गया 2. इसलिए मैंने लिखा है √2 इंटू √2 क्या होगा? 2. और 2 को 9 से मल्टीप्लाई करके 18. सो ऑलवेज कीप इन माइंड √3 इंटू √3 इज 3. √2 इंटू √2 इज 2. और मैंने आपको बता दिया हम क्यों लिखते हैं √2 इंटू √2 2 होता है.